Sir, we'll need 30 seconds. We're starting the process now. Pranav sir, you'll be starting the briefing? जी. We'll request everyone to mute yourself. So we are live now, so we can start. Prashant, can we start? Yes, please start, sir. We are live. नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज की स्पेशल प्रेस मीटिंग में स्वागत है। लॉकडाउन 4.0 का आज आखिरी दिन और पिछले 24 घंटों में लगभग 8300 नए केस आए हैं। कल ही सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा की है, परंतु इस पूरे महामारी के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रही वो रही श्रमिकों की, प्रवासी मजदूरों की। उनके घर जाने को लेकर के हो, सरकार की कुप्रबंधन को लेकर के हो, सरकार की असंवेदनशीलता की रही हो, या फिर ऐसे समय में मजदूरों के जेब से टिकट के पैसे निकालने को लेकर के हो। बस दिए जाने के बावजूद भाजपा की राज्य सरकार ने उसे श्रमिकों के लिए इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये तमाम समस्याएं रही। विश्वास नहीं करेंगे कि इस पिछले लगभग 68 दिनों में 667 लोग अपनी मौत के शिकार हो गए। उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा और ये सब नॉन वायरस डेथ्स थे। इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं आज के स्पेशल ब्रीफिंग में आदरणीय कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, द फ्लोर इज ऑल योर्स। Thank you very much, Pranav. Good afternoon, everybody. Before I really share some thoughts with you, it's important for me to talk about something that happened the other day when this government called a journalist a vulture. And if the government calls a journalist a vulture, then I think the government has forgotten the definition of culture. अगर आप हमारे जर्नलिस्ट को गिद्ध कहलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परिभाषा जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है वो आप भूल चुके हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। In fact, vultures clean up the environment. That is the role that they play within the animal kingdom. And I think journalists are also committed by their profession to clean up the vicious environment in this country, which has disrupted the lives of people, the economy of this country. And I think the journalists are playing a very, very vital role for the survival of humanity itself. The second thing that the government said was that high courts are running a parallel government. I wonder if this is meant to browbeat the courts. It's certainly a very arrogant attitude that should not be taken and should not be articulated in this fashion. अगर आप कहेंगे कि राज्यों में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये परिभाषा भी अपने आप में घमंड का एक चिन्ह है और घमंड के साथ कभी सरकारें चलती नहीं और ऐसी परिभाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हमें मालूम है कि कुछ पहले दिनों में हुआ कि हमारे एक दिल्ली
हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनको कहा गया कि अगर आप ऐसे फैसले देंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा, और कॉन्सिक्वेंस हुआ कि उनका तबादला हो गया। अभी हाल ही में गुजरात में म्युनिसिपल हॉस्पिटल के संबंध में एक बेंच ने एक निर्णय दिया, 144 पेज का जजमेंट दिया, और वहां से भी नया बेंच बनाया गया। अभी कल परसों की बात है, नया बेंच बनाया गया ताकि वो केस किसी और बेंच के पास चले जाए। जस्टिस कुरैशी की बात आपको याद होगी कि उनको मध्य प्रदेश भेजना था, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी और आज वो त्रिपुरा के चीफ जस्टिस हैं। मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं एरोगेंस देख रहा हूं, घमंड देख रहा हूं सरकार में, किस चीज का घमंड है ये तो मैं जानता नहीं। दिस गवर्नमेंट हैज in the past displayed this kind of arrogance, and we've known of the fact that Justice Muralidhar was told at one point in time that there will be consequences. That expression was used, and ultimately he was transferred to Chandigarh. Justice Qureshi, who was meant to be a Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, is now Chief Justice of Tripura because the government apparently had some misgivings. A bench which was hearing a matter in Gujarat about the municipal hospitals and wrote a 144-page judgment about this situation there. That case has also been taken away from that bench, and this is a matter just a couple of days ago. These are very unfortunate events that are taking place, and I hope that both courts and the government, more so courts, should take note of this. Because unless the courts are alive to what is happening on the ground and render judgments, this kind of attack and expressions used that high courts are running parallel governments is not conducive to a democratic environment. चौबीस मार्च को मैं समझता हूं एक वाटरशेड मोमेंट था। सरकार का रवैया 24 मार्च से पहले क्या था और सरकार 24 मार्च के बाद क्या कर रही है, इसमें बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है कि आपको मालूम है कि 24 मार्च के पहले मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक हिंदुस्तान के सामने सरकार के एजेंडे क्या थे? CAA, 370, ट्रिपल तलाक, NRC, पॉपुलेशन रजिस्टर, राम जन्मभूमि। ये इनका पोलराइज्ड एजेंडा, कम्युनल एजेंडा मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक था। और इस दौरान में आपको मालूम है कि छात्रों के साथ क्या हुआ, कैसे पुलिस का रवैया भी सही नहीं था, चाहे वो जामिया की बात हो, चाहे वो छात्र कहीं और की बात हो, JNU की बात हो। और इसी दौरान में सरकार ने UAPA भी लागू किया। और किसके ऊपर लागू किया? संसद में तो ये बताया गया कि हम तो टेररिस्ट के खिलाफ UAPA को लागू करेंगे, लेकिन लागू हुआ किस पे? अखिल गोगोई पे, जो एक RT एक्टिविस्ट हैं, सफूरा जरगार पे, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, शर्जील इमाम पे, जो JNU में है, मसरत जोहरा पे, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकार का एजेंडा रहा है, ये 24 मार्च को बदल गया। ये महामारी ने सरकार की लाचारी दिखा दी।
सबसे दुनिया में सबसे बाहुबली भी इसका सामना नहीं कर सकता। ना को यूएपीए के द्वारा उसको कोरोना वायरस को बंद कर सकता है, ना उसको डरा सकता है, ना उसको धमकी दे सकता है, ना एरोगेंस दिखा सकता है। और हिंदुस्तान का जो चेहरा था वो 24 मार्च 2020 के बाद बदल गया, सरकार की वजह से नहीं। जो भाईचारा पे दरार ला रहे थे 24 मार्च से पहले, हिंदुस्तान की जनता ने वही भाईचारा देश को दिखाया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, सड़कों पे जाने वाले माइग्रेंट को खाना खिलाया, उनके लिए व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। धर्म की कोई बात नहीं हुई। जनता ने सरकार को दिखा दिया कि देश को आगे कैसे चलना है। सरकार लाचार है, उनको मालूम नहीं कि हमें करना क्या है। प्रधानमंत्री जी ने पहले साल के कार्यकाल में देश की जनता को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई? He said, "My fellow Indian, I want to ask the Prime Minister that at least now tell us what is your definition of your fellow Indian. Does that definition fit into what happened prior to March 24, 2020? At least now change the way you are handling the future of this country." When I told you about 370, UAPA, NRC, population register, CAA, triple talaq, these were the agendas of the government. Where was the agenda for education? Where was the agenda for healthcare? Where was the agenda of taking care of the concerns of those who are poor? Where was that agenda? It was nowhere to be seen. Had this government in the last 6 years concentrated on the real issues of the people of India, पिछले 6 सालों में अगर हमारी सरकार ने जो देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, लोगों की आम जीने की समस्याओं का मुद्दा, अगर उस पे ध्यान देते तो शायद हिंदुस्तान आज कहीं और खड़ा होता। लेकिन इनका तो एजेंडा ही नहीं था। और फिर भी प्रधानमंत्री ने अपने चिट्ठी में यह कहा कि दिस इज द गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये इतिहास। The government tells the court that we are prophets of doom, and future history books will recognize these 6 years of this government as being a harbinger of doom. The Prime Minister talks about protecting democracy. Actually, till March 24, they tried to throttle democracy. He says he got rid of corruption and misgovernance. Demonetization was good governance, according to the Prime Minister. Multi-layered GST was good governance, according to the Prime Minister, I'd like to ask. These agendas prior to March 24 were good governance, were symbols of good governance, I'd like to ask. What is the definition of good governance? I mean, there is a scam in Himachal just recently on PPE where the BJP chief has resigned. The kind of quality PPEs that are now distributed to doctors, it's a matter of shame. And he said he made India a global leader.
Global leader of which world? Nepal is showing its eyes at us. China, remember the Prime Minister used to say that why don't you look China in the eye? Why doesn't the Prime Minister look China in the eye at what's happening across the border, across the line of control? At least instead of giving us news from sources, the foreign minister, the defense minister, to come and address the press and tell us what is the real state of affairs on the borders in this country. He said, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. हाँ, इतना तो मैं मानता हूं, कुछ लोगों का साथ, कम्युनलिज्म, कुछ लोगों का विकास और कम्युनलिज्म का साथ, और खो गया विश्वास. ये असलियत है. और ये कहते हैं कि हमारी 370 ट्रिपल तलाक, ये उनका 5वां पॉइंट था, 370 ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सीए, एक बड़ी भारी उपलब्धि थी और देश को एक उन्नति की ओर बढ़ाया. अभी मैं उन्नति के आंकड़े आपको दूंगा, कुछ ही समय में आपको दूंगा. फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो जो गरीब लोग थे उनको एम्पावर किया, उनका सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं का भी हुआ, किसानों का भी हुआ, युवाओं का भी हुआ. उनके लिए ये प्रायोरिटी थे. और प्रायोरिटी ये है कि आज के दिन जो गरीब है वो गरीबी की मार में कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी. कहते हैं कि रूरल अर्बन डिवाइड कम हुई है. इस देश में अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं. आपको मालूम है इस बात का, आंकड़े आप लोगों के सामने हैं. इस देश की जनता तो एक भारत चाहती है, चाहे प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें. हम अनेक भारत नहीं चाहते, हम एक भारत चाहते हैं. हम उस अनेक भारत का विरोध करेंगे और मरने तक विरोध करेंगे. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो श्रमिकों को जो सहूलतें नहीं मिली और जो कठिनाइयां आई, अपने आप में शायद वो जरूरी था, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई महामारी ना हो. लेकिन उसके दृश्य तो हम देख ही रहे हैं और आप पत्रकार लोग घर में दिखा ही रहे हैं. और प्रधानमंत्री ने आखिर में, उनका 10वां पॉइंट ये था कि मैंने तो 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज दिया. और वित्त मंत्री ने कहा कि वो that represented 10% of GDP, when all economists around the world and within us have said that that only represented 1% of GDP. अब ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि प्रधानमंत्री का नजरिया कुछ अलग है, कुछ हवाई नजरिया है, और जो रियलिटी जमीन पे है उसमें एक बहुत भारी अंतर है. वो रियलिटी मैं आज आपके सामने, आपके द्वारा, जिनको ये लोग गिद्ध कहते हैं, आपके द्वारा मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट. आपको मालूम है कि इस देश में कितने माइग्रेंट हैं? देखिए, 2 किस्म के माइग्रेंट होते हैं. आज मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं. एक तो माइग्रेंट ऐसे होते हैं जो प्रदेश में ही रहते हैं, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, एक तहसील से दूसरी तहसील में चले जाते हैं. और वो भी वहीं फंस गए क्योंकि उनकी मूवमेंट भी खत्म हो गई. तो उनको हम इंटरनल माइग्रेंट्स कहते हैं, मतलब कि माइग्रेंट जो प्रदेश में फंसे हुए थे, जो प्रदेश में ही काम करते हैं, वो बाहर से नहीं आते. और दूसरे किस्म के जो माइग्रेंट होते हैं
जो बाहर से आते हैं किसी और प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, चाहे वो बिहार से जाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जाएं, चाहे वो बंगाल से जाएं, उड़ीसा से जाएं, और उनकी जो संख्या है वो लगभग 2011 के सेंसस के मुताबिक वो लगभग 6 करोड़ है। और ये तो 2011 का सेंसस था, और उसको तो आप 9 बरस हो गए, 2011 से आज तक 9 बरस हो रहे, उसकी संख्या तो बढ़ गई होगी। तो हमारी सरकार के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे ये हमें पता चल जाए कि कितने बाहर से आने वाले, प्रदेशों में जाने वाले श्रमिक लोग हैं। ये डेटा सरकार के पास नहीं है। और कितने राज्यों में रहने वाले माइग्रेंट है, ये भी सरकार के पास डेटा नहीं है। तो अगर डेटा नहीं होगा तो राहत कैसे पहुंचेगी? और यही हाल है कि हमारी सरकार रोज के रोज निर्णय कर देती है, they make announcements. The fact of the matter is that this government doesn't even know the number of migrants. There are two kinds of migrants in this country. One kind of migrant that moves from state to state for work, for livelihood, whether it's from Bihar or Uttar Pradesh or it's from other states, Odisha, West Bengal. And then there are other migrants who actually are within the state but move from one district to another for work, one tehsil to another for work, one area to another for work. But they were also locked out. Now the government has no data about the number of migrants, either those who come from states or those who come or who live within states. The only figure we have is the 2011 census, that this number is around 6 crores. And this must have increased over the years because we are in the year 2020 now. So the government has no data as to where they are, what work they do, where they work. So if they don't have that data, how will they reach the people, those shramaks, those migrant labor, to give them rahat? According to the World Bank, there are 40 million internal migrants who have been impacted by the lockdown. And the unemployment rate, which is data from the CMIE, is 27.1%, which in March 2020 was 8.7%. मतलब कि जो बेरोजगारी आज के दिन है वो 87.1% है, जो मार्च में 8.7% थी। 12 करोड़ लोगों ने इस दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। 12 करोड़। उसमें से 9 करोड़ लगभग स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो श्रमिक लोग हैं, 9 करोड़ तो वही हैं। और 1.78 करोड़ जो सैलरीड लोग हैं और 1.8 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। तो ये 12 करोड़ बनता है। और अगर सरकार के पास कोई डेटा नहीं होगा, इस समय सरकार के पास केवल ये डेटा है कि 28 लाख लोगों को राहत मिली है, माइग्रेंट्स को राहत मिली है। मतलब कि जहां 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, ये कहते हैं कि 28 लाख लोगों को राहत मिली है। ये आंकड़ा हमारे सामने ये दिखाते हैं। बाकियों का क्या हुआ? बाकियों को कैसे राहत मिलेगी? फिर कहते हैं कि देखिए, हमने एक और बात आपको बता दूं, बहुत ही गंभीर है, और शायद मोदी जी कहते हैं कि भी उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो वी आर ऑन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, हमने बड़ी उन्नति दिखाई है। उन्नति का एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जो भूखमरी का इंडेक्स है विश्व में, उसमें हिंदुस्तान का रैंक 102 है 117 देशों में से। तो अगर ये लोग वो एजेंडे नहीं चलाते, CAA, NRC, और इस पे ध्यान देते, तो गरीब को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन ये तो गरीब में भूले हुए हैं, ये अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं गरीबों के साथ।
They are keeping their social distancing from the poor people in this country, because according to the global hunger index, India ranks 102 out of 117 countries. And had this government been concerned about the poor, it should not have moved the agendas that it did prior to March 24 and since 2014. Till May 14, 73 people died of starvation. 73 people died of starvation. मतलब कि मई 14 तक 73 लोगों की भूखमरी की वजह से जान चली गई। और वित्त मंत्री के ऐलान के बाद भी कोई 10.8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पीडीएस सिस्टम से बाहर हैं, क्योंकि जो वित्त मंत्री का डेटा है वो 2011 का सेंसस का डेटा है। उसके बाद तो कई लोग और जिनको पीडीएफ सिस्टम में आना चाहिए था वो भी नहीं है। वो 10.8 करोड़ ऐसे लोग। और अजीम प्रेम जी ने एक रिसर्च पेपर के द्वारा देश के सामने ये रखा कि हिंदुस्तान की जो 85% जो वर्क फोर्स है, जो श्रमिक लोग हैं, वो 10,000 रुपए कम महीने से माह से कम कमाते, 10,000 माह से कम कमाते, और 50% ऐसे लोग हैं जो 5,000 से भी कम कमाते। तो मुझे ये बताओ कि राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्या इस भुखमरी से जुड़ा हुआ है? क्या ये भुखमरी को मिटा दिया इन मुद्दों ने? प्रधानमंत्री आज भी कहते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धि है। आपको मालूम है कि पिछले मार्च 27 को उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं 1000 बसें भेज रहा हूं, तो श्रमिक लोग पंजाब से आए, हरियाणा से आए, दिल्ली से आए, वहां गाजीपुर में इकट्ठा हो गए, गाजियाबाद लाल कुआं में इकट्ठा हो गए, और वहां व्यवस्था थी नहीं, लोग बहुत ज्यादा से। और मतलब कि ऐसे वो बसों में बैठे जैसे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही ना हो। मार्च 21 से इन्होंने रेलवे नेटवर्क बंद कर दिया, 21 मार्च से, और फिर इन्होंने बाद में तय किया कि चलाएंगे। इस बीच में लोगों के पास पैसा नहीं था। आप मुझे खुद बताइए कि जो एक श्रमिक है वो क्या करे? उसको अगर बताया गया कि भाई ट्रेन चालू है, तो वो, क्योंकि 2-2.5 महीने से तो उसके पास कोई रोजगार है नहीं, उसके पास जो पैसे थे भी वो भी खत्म हो गए। और ये भी एक रिपोर्ट आई है कि, और स्वॉन रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया, बड़ा ये अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वॉन रिपोर्ट जिसमें ये भी कहा गया है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा, कि 23 मई 2020 में ये स्वॉन इज अ नेटवर्क, इज अ स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, which got calls from 30,000 people, stranded workers across the country. मतलब कि 30,000 लोगों ने उनको टेलीफोन किया, और ये कहा, उनमें से 93% लोगों ने ये कहा कि उनको कोई राशन नहीं मिला सरकार से। 93%, 93% of the people who called up SWAN, the Standard Workers Action Network, said that they had received no ration from government. And 91%, 91% ने कहा कि we have not been paid by our employers, कि हमें कोई रोजगार दिया ही नहीं गया, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कोई रोजगार नहीं दिया। और मई 22, 2020 में जो श्रमिक ट्रेन चली, इट वाज बिना खाना के चली, from Kanchipuram, Tamil Nadu to Jaside, Jharkhand, left without food arrangements. Disha, the NGO working in Odisha, managed to procure food for them. मतलब कि सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार तो दूर बैठी हुई है ना। प्रधानमंत्री जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं आपके द्वारा
कि वो नेटवर्क डिजिटल इकोनॉमी के बड़े सॉर्ट ऑफ सपोर्टर हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक मौका दें, हम जूम के द्वारा उनको शेल्टर होम के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्वारंटाइन होम के साथ कनेक्ट कर देंगे, उनकी बातचीत करा देंगे, ताकि उनको पता चल जाए कि वहां स्थिति है क्या। ये तो मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि मैं महामारी में कहीं जा नहीं सकता, केवल आपसे मैं आपको भाषण ही दे सकता हूं, या आपको कह सकता हूं कि ताली बजाओ, थाली बजाओ या दिया जलाओ। लेकिन अगर आपको वाकई में जानना है कि वहां स्थिति है क्या, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें अनुमति दे दो, हमारे लोगों को अनुमति दे दो। हम उन जगह पे चले जाएंगे, अस्पतालों में चले जाएंगे जहां व्यवस्था क्या है, हम क्वारंटाइन सेंटर में चले जाएंगे और आपको जूम के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। फिर आप सब देश को संबोधित करना और अपनी मन की बात बताना, दिल के विचार बताना और मन की बात भी बताना। जब किसी ने आरटीआई किया तो कितने, how many urban migrants are there? The response was that there is no systematic cover for them. We have no idea. तो अगर उनको आइडिया ही नहीं है, तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो श्रमिक लोग सड़कों पे चल रहे हैं, उनको राहत मिलेगी कैसे? 5 किलो अनाज से तो नहीं मिलेगी ना, सड़कों पे खाना तो नहीं बनाएंगे ना वो, और 1 किलो जो दाल है, पल्सेस हैं, उनसे तो नहीं मिलेगी। स्वान रिपोर्ट ये भी कहती है कि 64% of stranded workers said that they have less than 100 rupees left with them. ये लोग सड़कों पे जा क्यों रहे हैं? क्योंकि 2-2.5 महीने से यहां हैं, शहरों में पड़े हुए हैं, जा सकते नहीं। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे वो भी खत्म हो गया। इसीलिए 24% स्टैंडर्ड वर्कर्स स्वान को बताया कि हमारे पास तो 100 रुपया कुल रह गया, तो 100 रुपए से कौन सी टिकट वो लेंगे? वो तो स्कूटर पे लग जाता है आने जाने में। कई लोग तो शायद रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि only 6% of the workers had been paid during the lockdown as of April 26. And 3% out of around 10,000 workers for whom Swan had data had received any cash assistance from the government. 3% लोगों को सरकार से कैश असिस्टेंस मिली, 97% को नहीं मिली। ये स्वान रिपोर्ट है। तो ये मुझे बताइए, इंसान जिएगा कैसे? सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था की नहीं। एक और मैं सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए कि आपके पीएम केयर फंड से श्रमिक लोगों को कितनी राहत मिली, कितना पैसा आपने श्रमिकों को दिया? How much money? And that's a question I request the Prime Minister to please answer. I humbly request him. How much money have you paid to the migrants from the PM Care Fund? You know of the number of people who have died. And I refer you to the National Disaster Management Act, the Disaster Management Act, Section 12, and I will read it for you. कई लोगों की मौत हो गई इस दौरान, चलते चलते ट्रेन में एक्सीडेंट के द्वारा, भूखमरी के कारण कईयों की मौत हो गई, लगभग 667 लोगों की। अब धारा 12, Section 12 of the Disaster Management Act says, ex gratia assistance, that is, the national authority of which the Prime Minister presides, he is the head of the national authority, shall recommend guidelines for minimum standard of relief to be provided to persons affected by disaster
which shall include, और मैं पढ़ रहा हूं, ex gratia assistance on account of loss of life, as also assistance on account of damage and for restoration of means of livelihood. ये प्रधानमंत्री जी आपका कर्तव्य है, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो आप हमें बताइए, प्लीज टेल अस, दिस इज योर ड्यूटी टू गिव assistance in terms of money, ex gratia assistance to people for loss of life. जितने लोगों मरे, क्या आपने अपने पीएम केयर फंड से या आपकी सरकार ने उनको कुछ पैसा दिया, जो आपका कर्तव्य है? और अगर दिया तो किस किस को दिया और कब दिया और कितना दिया? और जो उनकी नौकरी चले गई, ये भी कहता है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो नौकरी चले गई उनका भी आपका कर्तव्य है कि उनको पैसा देना। आपने अपने केयर फंड से या केंद्र सरकार ने उनको पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया, ये भी हमें बता दीजिए। और आपने ये भी लिखा है फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, मतलब के जो विधवा हो गए, जो महिलाएं विधवा हो गई और जो बच्चे जिनके माता पिता की मौत हो गई इस दौरान में, उनको भी आपके लिए स्पेशल प्रोविजन, मतलब कि खास राहत उनको मिलनी चाहिए। तो आपने कितने ऐसे विधवाओं को राहत दी और कितने ऐसे ऑर्फन को राहत दी, हमें बता दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपके मन में कितनी ममता है और आपकी सरकार के मन में कितनी ममता है, और आपकी असलियत, जो असली मन की बात है, वो सामने आ जाएगी। मैं कोई किसी पे आलोचना नहीं कर रहा। देखिए, हमारा एक नागरिक होने के नाते भी, एक पॉलिटिशियन होने के नाते भी, हमें सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इस महामारी में देश उस ओर जा रहा है जहां आने वाले दिनों में हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब कह दिया है, वो नेगेटिव टेरिटरी में चली जाएगी, मतलब कि वो माइनस टेरिटरी में चली जाएगी। और इस बीच में जो लगभग 80 करोड़ लोगों का क्या होगा? और इस 80 करोड़ लोगों में से 45 करोड़ तो श्रमिक हैं, माइग्रेंट हैं, उनका क्या होगा? हमें भविष्य का देखना है, और इस भविष्य को देखते हुए, उस पर नजर रखते हुए, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि वो जो एजेंडे आपने पिछले 5 साल में चलाए, उनको दरकिनारे रख दीजिए। देश की, गरीब की मुश्किलों का सामना करने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करिए कि आप हर समय, हर कदम पे, हर निर्णय के द्वारा उस गरीब के आंसू पोंछें, ना कि उसको इस स्थिति में लाएं कि वो आंसू बहाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतने विस्तार से सारी जन समस्याओं को सामने रखने के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि पहले जो हम सवाल हो सुओ मोटो से ले, तो उससे जो संबंधित प्रश्न हो वो एक करके आप मुझे इंगित करें। पहला रिक्वेस्ट आया है IANS से सैयद इमाम साहब का। सैयद, आप अपना सवाल पूछो, उसका सिद्धार्थ पाता हूँ आपके पास। सिब्बल साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, आपने कहा कि 24 मार्च से पहले गवर्नमेंट का एजेंडा कुछ और था, लॉकडाउन में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर ने देश के नाम चिट्ठी लिखी है, उसमें उन सभी मुद्दों का जिक्र किया है कि वो उनका अचीवमेंट है, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का हो, CA का हो, NPR का हो, सारी चीजें का उन्होंने जिक्र किया है। तो गवर्नमेंट अपने डिवेसिव एजेंडा से पीछे नहीं हट रही, चाहे पैंडेमिक हो या पैंडेमिक ना हो। नहीं, ये पेंडेमिक ने एजेंडा चेंज किया है, सरकार ने नहीं किया। अब पेंडेमिक की वजह से वो एजेंडा आप ये लागू नहीं कर सकते।
क्योंकि देश के सामने इतनी भारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी, अब आपने कभी अभी गृह मंत्री जी को सुना पिछले कई महीनों से? मतलब कि गृह मंत्री जी तो हर अपॉर्चुनिटी को खराब नहीं करते थे, वो तुरंत भाषण देके और आक्रामक भाषण देते थे। गृह मंत्री जी अब मालूम नहीं कहाँ है, चुप हैं। इसी वजह से चुप हैं क्योंकि जो समस्याएं पैदा हो गई महामारी की वजह से, उसकी वजह से जो लाचारी सरकार में पैदा हो गई, इनको मालूम नहीं कि रास्ता क्या अपनाएं, कहाँ चले। ये तो एक ऐसा है कि बुलेट ट्रेन ऑफ ट्रैक हो गई। यही सरकार की स्थिति है। ट्रेन तो बुलेट ट्रेन थी, लेकिन ऑफ ट्रैक हो गई। अब जो नॉर्मल गुड्स ट्रेन है वो चलेगी, और उसके कहीं ना कुछ ना कुछ तो देश के लिए करना पड़ेगा ना। धन्यवाद सर। अगला सवाल सिद्धार्थ एएनआई से। सिद्धार्थ, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के एजेंडे पे जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो थी ही नहीं, और सरकार के एजेंडे की वजह से आज ये पेंडेमिक जो है इस तरीके की कंडीशन देश को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल सर इस बात को लेके है कि अभी तक भी सरकार की तरफ से ये बात नहीं बताई जा रही कि आखिरकार ये इन्फेक्शन, ये वायरस रुकेगा कहाँ जाकर। इसके लिए तैयारी क्या हो रही है? लॉकडाउन खोल दिया गया, जो रिलैक्सेशन दे दी गई, अनलॉक 1 जिसे कहा जा रहा है, लेकिन अनलॉक 1 हम तब कर रहे हैं जब लाखों में केसेस आ चुके हैं। लेकिन उसके लिए जो एसओपीज हैं, उनके लिए क्या राज्य सरकारों से बात होनी चाहिए भी, और जिस तरीके की रिलैक्सेशन है, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, उनके साथ बड़ी समस्या ये हो रही है कि वहां की राज्य सरकारें उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख रही हैं, पॉजिटिव निकल रहे हैं वो, ना तो वो इधर के रह गए ना उधर के रह गए। तो इस पर क्या कांग्रेस का रवैया है? देखिए, दो बातें मैं सामने रखना चाहता हूं आपके। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने फैसला पहले दिन किया था कि इसको हम 4 घंटे में लागू कर देंगे, मार्च 24 का जो उनका अनाउंसमेंट था कि 12 बजे तक, 8 बजे अनाउंसमेंट किया तो 12 बजे तक लॉकडाउन हो गया। जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी ऐसे ही किया था। इनको ये नहीं मालूम था कि कितने माइग्रेंट वर्कर हिंदुस्तान में हैं। इन्होंने बहुत बिना सोचे समझे नी जर्क रिएक्शन करके उसको लागू कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग वहीं के वहीं रह गए। और जो बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही थी, और ये महामारी तो बाहर से आई ना, ये पेंडेमिक तो बाहर से आया। ये बेचारे गरीब आदमियों को तो कोई इससे ताल्लुक नहीं था, और जहां उनको खड़ा कर दिया वहां इनको हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब वो देहात में जा रहे हैं क्योंकि ये इतनी देर तो रुक नहीं सकते थे। तो पहले फैसला ही गलत था। अब इनको मालूम नहीं करना क्या है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जो सरकार, देखिए, इनको सरकार कभी चलानी नहीं आती, इसीलिए तो ये एजेंडे इनके पोलराइज्ड एजेंडे रहे हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है नेशनल लेवल पे, क्योंकि राज्य सरकार में तो ये सब अपना रवैया ठीक ठाक कर लेते थे। लेकिन अब इनको मालूम नहीं कि इसका सामना कैसे करना है। तो कभी ये एक एडवाइजरी इशू करते हैं, फिर 2 घंटे बाद दूसरी उसको चेंज करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं। इनको मालूम नहीं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इनकी सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज्यादा हो गई है जनता से, इनको मालूम ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि आप हमें कुछ आके संबोधित तो करो कि आप किस मोड पे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कब पहुंचोगे, माइलस्टोन्स क्या हैं, क्या करने वाले हो। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। धन्यवाद सर। संजय मिश्रा जी हैं दैनिक जागरण से। संजय जी, नमस्कार सिब्बल साहब। पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी हाँ। सिब्बल साहब, आपने कहा सॉलिसिटर जनरल की बात का, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने वल्चर वाला स्टेटमेंट दिया उसका जिक्र किया, पर लॉ मिनिस्टर ने भी कुछ इसी लाइन पे कल कहा था कि जो लोग अनइलेक्टेड हैं या हार गए हैं वो थ्रू कोर्ट्स जो है वो गवर्नेंस पे हावी होना चाहते हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने इससे पहले भी 2-3 ऐसे वाकये हुए थे, और ख़ास करके जब माइग्रेंट्स का इशू आया था मार्च में, तो उन्होंने उसी तरह के स्टेटमेंट दिए थे और मिसलीड किया था कोर्ट को। लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से वही बात कह रहे हैं,
तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये मामला सिर्फ सॉलिसिटर जनरल का कोर्ट तक नहीं है, बल्कि पूरी गवर्नेंस इस तरह से दिख रही है कि जो लोग सवाल उठाएं या जो फॉल्ट लाइन को दिखाएं, उनको चाहे वो कोर्ट हो, पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रही है 11 हाई कोर्ट्स के बारे में, ये सब सारे इश्यूज पे आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए? और सुओ मोटो अगर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है तो बाकी लोगों को या आप जैसे अपोजिशन पार्टी के लोगों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सलाह तो मैं दे नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट को, वो तो खुद अपना निर्णय करेंगे। लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही है, तो ये कोई किसी एक इंडिविजुअल की बयानबाजी नहीं है, किसी एक लॉ ऑफिसर की बयानबाजी नहीं है, ये सरकार की बयानबाजी। अगर कोई लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कोई ऐसा बयान देता है तो वो सरकार बयान दे रही है, और नेचुरली निश्चित रूप से जो लॉ मिनिस्टर है वो उसकी सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन ये क्योंकि जनता से इतने दूर हो चुके हैं, देखिए जिस सरकार को ये नहीं मालूम और जिसने बयान दिया अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कि कोई माइग्रेंट लेबर रोड पे है ही नहीं, सड़क पे है ही नहीं, तो इसका मतलब इनको उनके चेहरे दिखते ही नहीं। जब चेहरे नहीं दिखेंगे तो दुर्गति पैदा होगी, चेहरे नहीं देखेंगे तो राहत पहुंचेगी नहीं, राहत नहीं पहुंचेगी तो जो महामारी का जो नतीजा हम आपके द्वारा देख रहे हैं, उससे हमें ये लगता है कि सरकार को ये देश चलाना भी नहीं आता। धन्यवाद सर। रमन झा फ्रॉम न्यूज़ 24। रमन जी अनम्यूट करिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मोहित दुबे न्यूज़ नेशन से तब तक पूछे। मोहित जी, मेरी आवाज आ रही है सिबल साहब? जी हाँ, जी हाँ जी, नमस्कार सिबल साहब। मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से आपने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि कोरोना वायरस फैला दुनिया के मुकाबले, क्योंकि लॉकडाउन हमने सही समय पे लगाया। उन्होंने ये कहा है, आपने ये कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है। उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो अब चलना शुरू हो गया है। तो आपके जो आरोप हैं, उनके जो जवाब हैं, तालमेल कहीं दिखाई देता नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैं तो अपने जवाब आंकड़ों से देता हूँ, मैं कोई मन की बात करता नहीं हूँ, ना मैं किसी को सपने दिखाता हूँ, ना मैं ऐसे बयान देता हूँ। इसी पर हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था जब इन्होंने 24 मार्च को ऐलान किया लॉकडाउन का। इन्होंने क्या कहा था, आपको याद दिला दूं। इन्होंने कहा था कि 21 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, कहा था ना, तो ठीक हुआ। तो हम कितना विश्वास करें। डिमोनेटाइजेशन के वक्त 8 नवंबर 2016 को इन्होंने कहा था कि 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, हुआ। तो मैं तो आंकड़ों से बात करता हूं, इनके बयानबाजी के बारे में मैं खुद आपको बता रहा हूं। तो अगर जो हमारा जो 4th क्वार्टर का ग्रोथ है, मतलब कि 2019-20 का 4th क्वार्टर का जो ग्रोथ रहा है दिसंबर से लेकर मार्च तक, तो वो 3.1% है। उसमें लॉकडाउन का केवल 7 दिन है, ठीक है ना। पिछले 2018-19 में जो ग्रोथ थी वो 5% पहुंच गई थी। इस क्वार्टर में 3.1, ये आंकड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बड़ी भारी उन्नति हो रही है, उनकी वजह से मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत स्थिर है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, तो आंकड़े गलत हैं। फिर ये आंकड़े मेरे तो नहीं है, तो सरकार के आंकड़े हैं। और फिर आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में होगी, मतलब कि माइनस में जाएगी। वो मैं नहीं कह रहा, वो कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, और बाकी जो विश्व में जो अर्थशास्त्री हैं वही ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो आंकड़ों से बात करता हूं। अगर कोई बयानबाजी करता है तो उसको तो मैं जवाब केवल आंकड़ों से दूंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जो भी कहते हो, जब भी कहते हो, ऐसा कहो कि जनता का विश्वास आपसे जुटा रहे।
अब जनता का विश्वास अगर उठ जाएगा, सबका विश्वास अगर उठ गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम सोचने लगेंगे, जनता सोचने लगेगी कि आप जो कहते हो वो सही नहीं है, और ये हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी ऐसा सोचे। धन्यवाद सर। रमन जी। साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अब ये फैसला हुआ है कि 8 तारीख से करीब करीब पूरे देश में सारी स्थिति अपने हिसाब से चलनी शुरू हो जाएंगी, कोई नियंत्रण नहीं होगा, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कह रही है, लेकिन जो लगातार कोरोना के संक्रमण के चलते लाखों लोग पूरे देश में इसके शिकार हो रहे हैं, ऐसे समय में क्या लॉकडाउन खोलने का फैसला सरकार का सही है? देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा है कि ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं, ये डेटा के अनुसार बातें, नीतियां बनाई जाती हैं। डेटा सामने होता है, उसका फिर निष्कर्ष करके क्या आगे कैसे कदम बढ़ाना चाहिए ये सरकार ही जानती है, क्योंकि मेरे पास तो डेटा है नहीं। लेकिन अगर सरकार कहे कि 8 जून के बाद ये जो आपके मॉल्स हैं ये खुल जाएंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ चीजें खरीदने कौन जाएगा, किसके पास पैसा है? बिजनेस बैठ गई, छोटे व्यापारी बैठ गए, सैलरी लोग की कमती हो गई सैलरी, जो पेंशनर थे उनकी भी पेंशन, उनको भी कमती पैसा मिलने लगा, जो सेविंग रेट है वो भी कम हो गया, तो यहाँ जाएगा कौन और बिजनेसेस चलेंगे कैसे? ये हमारे सामने, देश के सामने समस्या। आप जो मर्जी करते रहे, और फिर अगर आप आज ही कान मार्केट में चले जाइए या कहीं और चले जाइए, देश में कहीं और चले जाइए, वहां लोग घूम रहे हैं जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लेकिन सरकार की सबसे अहम जिम्मेवारी ये है कि डेटा के हिसाब से फैसला करें, ये नहीं कि आज कुछ कह दिया और 2 घंटे बाद उसको बदल दिया। मैं नहीं समझता कि इन चीजों के साथ हमारी जो इंजन ऑफ इकोनॉमी है उसमें कोई गति आएगी। और मैं तो हमेशा हम कहते रहे हैं कि जब तक आप गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं दोगे तो ये दुर्गति तो चलती रहेगी। थैंक यू सर। अगला सवाल राकेश कपूर जी का है। राकेश जी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करिए राकेश जी। आवाज आ रही है? जी हाँ जी। सिब्बल साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने पहले भी ये सवाल खड़ा किया था कि एनडीएमए के तहत इन्होंने लॉकडाउन लागू कर दिया, लेकिन नेशनल प्लान कहाँ है? अब मैं आपसे एक जो मुख्तसर सा सवाल ये पूछता हूँ कि क्या ये दौर ऐसा है जिसमें सो कॉल्ड नेशनलिस्ट या उसे नेशनलिस्ट एजेंडा और पीपल्स एजेंडा, इन दोनों में युद्ध हो रहा है? क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लंबे लबाव मेरे दिमाग से यही निकलता है कि ये दोनों कन्फ्रंटेशन स्टेज पर है। नहीं, कौन सा दूसरा एजेंडा क्या आपने कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक तरह से। पीपल्स एजेंडा, पीपल्स एजेंडा, जनता का एजेंडा। अच्छा, जनता का एजेंडा। भाई देखिए, एजेंडा तो केवल देश में एक ही होता है, वो जनता का एजेंडा होता है। सरकार का एजेंडा भी जनता का एजेंडा होना चाहिए। जो सरकार जनता को नजरअंदाज कर दे, जो सरकार जनता के चेहरे नहीं देखे, जो सरकार गरीब के चेहरे, वो माइग्रेंट लेबर के चेहरे नहीं देखे, वो बच्ची के चेहरे नहीं देखे, तो उसका एजेंडा तो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो कभी नेशनलिस्ट एजेंडा हो ही नहीं सकता जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं हो। ठीक है ना? जनता, वही नेशनलिस्ट एजेंडा होता है जो जनता से जुड़ा होता है, और ये एजेंडा इनका जनता से जुड़ा हुआ ही नहीं है। देखिए, जहां मतलब कि एक छोटा बच्चा कपड़ा खींच रहा है देखने के लिए कि माँ अभी जिंदा है या नहीं, और एक बच्चा सूटकेस पे व्हील्स पे सोया हुआ है बेचारा, और कोई राहत किसी को मिल नहीं रही, तो उस सरकार का जनता का एजेंडा क्या होगा?
आप उस बात को समझ सकते हो। इसमें कोई नेशनलिज्म की बात, नेशनलिस्ट वही है जो जनता को गले लगाता है, जो जनता के बारे में सोचता है, जो उसके शिक्षा के बारे में सोचता है, स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, गरीबी हटाने के बारे में सोचता है। इसलिए आपको मालूम है, एक बात और बता दूं आपको, एक और आंकड़ा दे दूं। कभी कहा जा रहा है कि जो 21.7% जो गरीबी रेखा के लोग रह रहे हैं, वो इस दौरान में 46% तक हो जाएंगे। 46% तक, मतलब कि गरीबी रेखा के लोग में बढ़ोतरी आ जाएगी लगभग 20%, लगभग 20%। और तो क्या ये जनता का एजेंडा है? सर, एक सवाल मेरे पास अनुराग ढांडा जी ने भेजा है नेटवर्क 18 से विदेश मामलों पर। वो कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर तक G7 की बैठक को स्थगित किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को आमंत्रित करना चाहते हैं ट्रंप। क्या ये चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति है, वो ऐसा पूछना चाहते हैं? क्या ये भारत के लिए अच्छा है? नहीं, देखिए, जहां तक अमेरिका सवाल है, देखिए मैं समझता हूं कि इसमें आज हमें अपने देश के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और G7 में क्या होगा, क्योंकि देश के सामने ऐसी समस्याएं हैं कि हमारा नजरिया भड़कना नहीं चाहिए। अमेरिका का अपना एजेंडा है और आप प्रेसिडेंट ट्रंप के कई बयान सुन चुके हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि चीन के साथ मैं मीडिएट कर सकता हूँ, मीडिएट करना आप माने तो मैं मीडिएट करूंगा। तो ट्रंप साहब तो बहुत कुछ कहते हैं, कश्मीर के बारे में भी कहते हैं, और अभी उन्होंने कह दिया कि WHO से हम निकल रहे हैं, अभी उन्होंने फैसला किया। तो मैं ट्रंप साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इलेक्शन ईयर है और ट्रंप साहब अपनी इलेक्शन के संबंध में अपने निर्णय ले सकते हैं। अभी अमेरिका में राइट्स हो रही हैं, आपको मालूम है कि जिस तरह से सारे कैलिफोर्निया में राइट्स हो रही हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इतना जरूर है कि जो हमने यूपीए ने संबंध बनाए हुए थे देशों के साथ, उसमें बहुत भारी दरार आ चुकी है। चाहे वो चीन के साथ संबंध हो, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हो, चाहे विश्व में हो। और ये अपनी वाहवाह जरूर करते हैं, हमारी सरकार अपनी खुद की वाहवाह जरूर करती है, लेकिन अपनी वाहवाह करने से स्थितियां बदल नहीं जाती। धन्यवाद सर। लगभग 1 घंटे हो गए हैं और प्रश्न का सिलसिला भी समाप्त नहीं हो रहा। एक अब्दुल बारी जी, उनके बगैर कोई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त नहीं होती। रीमा जी भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। रीमा जी आप पूछ लें फटाफट। Your connection is not well, Rima ji. We can't hear you. जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू है, जो हालत है इकोनॉमिक कंडीशन, और MSME का जो हालत है, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और गवर्नमेंट ने लोन देने को कोशिश किया है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था, इस सिचुएशन में सर जो गवर्नमेंट ने वन से लोकल वोकल का बात कर रहे हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है, और जीडीपी का जो हालत है अभी प्रेजेंट हालत, उसको कैसे सुधार आएंगे अकॉर्डिंग टू, और ये लोकल वोकल वाला कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी मरीज आईसीयू में है और आईसीयू में पड़ा है और डॉक्टर अस्पताल उसको कहे कि ऐसा है तो आईसीयू में तो पड़ा है, लेकिन हम आने वाले वर्षों में जो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम बदल देंगे और इसकी वजह से तुम ठीक हो जाओगे। तो यही हालत हमारी इकोनॉमी की है कि उस मरीज को तो उस समय राहत चाहिए, उसको तो दवाई उस समय चाहिए ना। अगर वो आईसीयू में है कि उसको दवाई उस समय चाहिए, उसको कहे कि साहब आप अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देंगे, तो उसको कोई लेना देना नहीं है उससे, वो तो अपनी जान बचानी है। तो यही हमारी इकोनॉमी। ये कहते हैं कि देखिए हम MSCI को ये दे देंगे, हम NBCs को ये दे देंगे, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कह दिया कि 8 लाख करोड़ की और अनुमति और लोन दे सकते हैं बैंक्स, बट बैंक्स लोन कहाँ दे रहा है? वही 8 लाख करोड़ की जो बात है, बैंक तो वापस RBI में इन्वेस्ट दे रहा है ताकि वो इंटरेस्ट कमाए वहां से। तो ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है। ये जो हमारे वित्त मंत्री ने जो ये जो
पैकेजेस दिए, वो तो ऐसा लगता था कि या तो वो नया बजट पेश कर रहे हैं और या तो एक नीतियां बना रहे हैं, नई नीतियां बना रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में क्या होगा। तो इससे तो राहत तो अभी चाहिए ना, वो मरीज को तो राहत अभी चाहिए, उसके बारे में तो कुछ है नहीं। इसीलिए सभी लोग इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि दिस इज इट ओनली इज 1% ऑफ द जीडीपी दैट इज बीइंग गिवन, the 20 lakh crore package which the prime minister talked about, which the finance minister said represented 10% of the GDP which was being given to the people. But that's not true. मतलब कि अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं और ये कहा जाए कि लोन, बैंक कहे मुझे कि तुम लोन ले लो, वो मुझे राहत तो नहीं मिली ना। लोन मैं तभी लूंगा जब मुझे जरूरत होगी और जब मेरा धंधा चलेगा। अब धंधा ही नहीं चलेगा तो लोन कहां से लूंगा? और वो पैकेज कैसे हो गया, वो लोन पैकेज कैसे हो गया? मतलब ये भी एक जनता को गुमराह करने की बात है। सर एक सवाल है क्या? कामिया कपूर है। I have a question here, sir. Yes. How are you, sir? Yes, fine, thank you. So I just want to know, at this, like you've mentioned that India's relation with many of the foreign nations have taken a hit under the present dispensation. And given what is happening at the borders right now, there seems to be no clarity, no statement coming from the government's end, from the defense minister or from the MEA. Do you think the government should have called for an all-party meeting to take into confidence all the legislators? That's my first question to you. Secondly, sir, there has been rising cases of coronavirus reported from Delhi, which is at an exponential rate. Now, you've also been associated with Delhi politics, sir. Do you think the manner in which the AAP government has handled it so far should have done better? First of all, you asked two separate questions. As far as the first question is concerned, I already gave an answer in my initial statement. Namely, it's time for the defense minister or the foreign minister to tell us, come to the press, take questions, at least issue a statement as to what the reality on the ground is on our borders as far as China is concerned. That's not been done. And this should not be done through sources. News should not be leaked out through sources. I think the government owes it a duty to tell the people of this country, forget for the moment the political parties, tell the people of this country. Once we know the exact situation, then the question arises whether political parties should be brought together and consulted. That's the next step. But I think the first step has not yet been taken. That's my answer to your first question. As far as answer to the second question is concerned, I think the government needs to put out, कि एक्चुअल डेथ्स दिल्ली में कितनी है। दिल्ली सरकार को ये कहना चाहिए और ये आंकड़े आपको निगमबोध घाट से लेने चाहिए और पंजाबी बाग का जो है वहाँ शमशान घाट से लेने चाहिए, तब पता चलेगा कि कितनी मृत्यु हुई हैं। और ये कहते हैं कि 300 हुई हैं, लेकिन आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। और मेरी भी बात होती रही है, डॉक्टरों के साथ होती रहती है, वो कह रहे हैं कि अब अस्पताल भरे जा रहे हैं। धन्यवाद सर। अब्दुल बारी जी, मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब हो गया। एक मिनट में पूछ रहा हूँ मैं सर। आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, आप नामी गिरानी वकील भी हैं और लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं। आपने अपने 100 मोटो में जो है, यू अंडरलाइन मेनी इंस्टेंसेस हाउ द जुडिशरी इज अंडर थ्रेट। यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि जुडिशरी इस गवर्नमेंट में जो है उसकी इंडिपेंडेंस जो है तो थ्रेट में है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट जो है, आपने डीवीसी एजेंडे की बात की, पीपल्स एजेंडा पर अमल नहीं कर रही है, तो उसके लिए अपोजिशन किस हद तक जिम्मेदार है? दीज आर माय 2 क्वेश्चन सर। देखिए, जहां तक पहला सवाल है, मैंने ये नहीं कहा कि जुडिशरी इज अंडर थ्रेट। मैंने ये कहा कि द गवर्नमेंट इज एरोगेंट। देखिए, जहां तक जुडिशरी का सवाल है, दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे नो व्हाट देयर पावर्स आर एंड दे विल एक्सरसाइज दोस पावर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट द जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन will succumb to any executive government. There may be some stray instances, but it is more the arrogance of the government that I was talking about. That's my answer to your first question. As far as the opposition is concerned, we're in the situation of lockdown. We can't go out. What can we do in these? We can't hold demonstrations. We should not also, because the nation is in dire need of unity at this point in time, and we want to show to the government that we are willing to move along with you, but there are issues that you need to resolve because you have the data and you have the power and you have the wherewithal to resolve that. The opposition's role in a lockdown is very limited, and the only role that we have is through you to tell the people of this country what the reality on the ground is, because they have forgotten about that reality and they are looking the other way and not even recognizing that reality. Thank you, sir.
Thank you, sir. It's been nearly an hour and 10 minutes now. Thank you. Questions still coming, but I'd like to thank you. Thank you everyone for joining. Thank you for taking out time on Sunday, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.